as we already discussed yesterday about protein, and we also discussed about amino acid, but it was not in detail. Today we will discuss about the amino acid in detail. That what is amino acid? You already know that amino acid is the basic unit of protein. Basic structural unit of protein is amino acid. Then these are the classification of amino acid according to a structure classification. As we already we will also discuss the structure classification of protein also. According to the polarity, according to a nutritional classification of amino acid, according to the metabolic fat. Okay, the first one is according to the structure classification. It has three main classification. One is aliphatic, aromatic, and amino acid. Amino acid, which is only one, which is known as proline. Aliphatic amino acid is again multiple classification. The first one is simple amino acid. The second one is branch chain amino acid, OH group amino acid, sulfur containing amino acid, acidic amino acid, and basic amino acid. What are simple amino acid? The simple amino acid containing these type of amino acids, which is known as glycine and alanine. The second one is branch chain amino acid, which mean will mean V for valine, isoleucine, and lysine. And the third one, OH group. OH group classification of amino acid is these are tyrosine, serine, and threonine. Sulfur containing amino acids are methionine, cysteine, while acidic amino acid containing aspartic acid and glutamic acid. And the basic amino acids are the formula has basic are loose, mean histidine, arginine, lysine. These are the classification of aliphatic. We will not discuss about aromatic. You should discuss yourself in Google too. The second one, classification of amino acid according to the polarity. According to the polarity, we do have two types of amino acid. One is polar amino acid, and the second one is non-polar amino acid. Again, the polar amino acid is having two types of amino acid. Polar amino acid is again having two types, charged and uncharged. And charged amino acid is again having two types, negatively charged amino acid and positively charged amino acid. What are positively charged? Negatively charged amino acid are acidic, are basically acidic in nature, which contain aspartic acid and glutamic acid. These are acidic, negatively polar amino acid. While the second one is positively charged basic amino acid, which containing histidine, lysine, and arginine. These are what? These are polar charged amino acid. फिर हमारे पास then the next one is uncharged polar amino acid. Uncharged polar amino acid, which contain glycine, serine, asparagine, threonine, glutamine. These are the types of what? Uncharged polar amino acid. And the second one, classification according to the polarity, is non-polar amino acid. And the non-polar amino acid containing phenylalanine, tyrosine, tryptophan, leucine, and isoleucine. Now we go to the third step, which is according to the nutritional classification. According to the nutritional classification of amino acid, we already discussed in the first one chapter of protein that there are two classification according to the nutritional classification, which is essential amino acid and non-essential amino acid. Essential amino acid are those type of amino acid which we do have in our diet. It's very important to have in our diet because these type of amino acid are not synthesized by our body. The simplest formula for remembering the essential amino acids, met while file: M for methionine, A for arginine, threonine, T for tryptophan, valine, isoleucine, lysine, P for phenylalanine, histidine, LY for lysine.
The second one is non-essential amino acid which are synthesized by body, and we do it's not important to that we should to have in our diet, because our body can compensate in the absence of these type of amino acid in our diet. The third amino acid, the third types of amino acid is according to the metabolic pathway. We have two types of amino acid, ketogenic and glucogenic. Ketogenic amino acid are leucine and lysine. Ketogenic mean they are totally lead to, these type of amino acid are totally lead to production of ketones in your body. And these are glucogenic amino acid these are totally lead to the production of glycogen or glucose in your body. According to the structure of protein, now we will discuss about the structure of protein. We do have four types of structure of protein. One is primary amino acid, primary protein. What are primary protein? Primary protein are those type of protein which have linear form of linear chain. जिसमें कौन सा चेन होता है? लीनियर चेन में होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं. एंड द सेकेंडरी types of protein are those type of protein which folding upon itself, it's just like a spring की तरह बना देते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोटीन कहते हैं. जैसे इस तरह स्प्रिंग लाइक होता है, इसी तरह ये इस तरह स्प्रिंग लाइक होता है, फोल्डिंग होती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोटीन कहते हैं. एंड द टर्शियरी प्रोटीन आर दोज टाइप ऑफ प्रोटीन when the folding form further structure. जैसे फॉर एग्जांपल ये फोल्डिंग है, फिर इसके साथ अटैच हो जाते, इसी तरह फर्दर स्ट्रक्चर बनाते, इसको हम क्या कहते हैं? टर्शियरी प्रोटीन कहते हैं. एंड द लास्ट वन इज क्वाड्रिनरी प्रोटीन. हम उस टाइप्स ऑफ प्रोटीन को कहते हैं जो जिसमें क्या हो? विच हैविंग 2 or more सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 or more से ज़्यादा हो और पॉलीपेप्टाइड चेन हो, इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिनरी टाइप्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं. सही है. अगर हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द स्लाइड प्रेजेंटेशन की तरफ आप लोगों को बता देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन क्या है? मजीद हमने ये पढ़ा था कि प्राइमरी प्रोटीन आज दो टाइप ऑफ प्रोटीन जिसमें क्या हो? लीनियर चेन होती है. कौन सी चेन होती है? लीनियर चेन होती है. इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं. देख लो, प्राइमरी प्रोटीन हम इसको कहते हैं, जैसे देखो दीज आर द एमाइनो एसिड. हमने ये कहा था कि प्रोटीन किससे बनते हैं? प्रोटीन एमाइनो एसिड से बनते हैं. दीज आर द एमाइनो एसिड. दीज अरेंजमेंट form of amino acid will lead to production of protein. सही. लीनियर चेन टाइप होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोटीन. अ प्रोटीन रिफर्स टू अ नंबर और सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड हील्ड टुगेदर बाय, इसमें कौन सा बॉन्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड. जैसे यस्टरडे हमने पढ़ा था डाइपेप्टाइड, और क्या कहता है? ट्राइपेप्टाइड. डाइपेप्टाइड क्या कहता है? इट्स ओकर बिटवीन 2 एमाइनो एसिड. ट्राइपेप्टाइड इट्स ओकर बिटवीन 3 एमाइनो एसिड के दरमियान जब लिंकेज बनते, बॉन्ड बनते, इसको हम कहते हैं ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. स्लाइड चेंज इन एमाइनो एसिड कैन चेंज द एंटायर प्रोटीन. एग्जांपल में हमारे पास ह्यूमन इंसुलिन जो है वो कौन से टाइप्स ऑफ प्रोटीन में आ जाते हैं? प्राइमरी प्रोटीन में आ जाते हैं. सेकेंडरी प्रोटीन वो कौन से हैं? अ प्रोटीन रिफर्स टू अ रेगुलर रिकरिंग अरेंजमेंट ऑफ एमाइनो एसिड. हमने ये कहा था कि क्या फोल्डिंग बना देती है. जब ये एमाइनो एसिड फोल्ड लाइक बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? हाँ. सेकेंडरी प्रोटीन के अगेन 2 टाइप्स होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा फ्लीटेड शीट कहते हैं. हेलिक्स किसे कहते हैं? एमाइनो एसिड फॉर्म अ क्वाइल टाइप या स्पिरेला जैसे होते हैं, इन विच एमाइनो एसिड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. जिसमें क्या होते हैं? ज्वाइंट टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. ईच टर्न कंटेन्स 3.6 एमाइनो एसिड होते हैं, जो जिसका स्ट्रक्चर क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे सेकेंडरी प्रोटीन के एग्जांपल क्या है? हेयर है और वूल है. सही है. नेक्स्ट वन हमारे पास जैसे हमने पढ़ा था कि बीटा फ्लीटेड शीट कौन से होते हैं? पैरेलल स्ट्रैंड और पॉलीपेप्टाइड हील्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड. फ्लेक्सिबल बट नॉट इलास्टिक होते हैं, जैसे सिल्क वगैरह हैं एग्जाम्पल के तौर पे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट?
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, फ्लीटेड टाइप ऑफ बीटा फ्लीटेड शीट और सेकेंडरी प्रोटीन के टाइप से। फिर हमने पढ़ा था टर्शियरी प्रोटीन, जब वो फोल्डिंग जो है स्प्रिंग लाइक फोल्डिंग जो है मल्टीपल आ जाए, देखो फोल्डिंग जो है मल्टीपल अरेंजमेंट में आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, टर्शियरी प्रोटीन कहते हैं। सही है। अब द कॉइल इनटू द स्पेसिफिक लेयर ऑफ फाइबर टर्शियरी स्ट्रक्चर गिव्स प्रोटीन देयर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इस टर्शियरी प्रोटीन का क्या होता है, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। सही है। स्पेसिफिक biological activity stabilized by several types of bond like salt bridge, hydrogen bond, disulfide bond और hydrophobic bond जो है ये क्या करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बरकरार रखती है। कौन कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड और कौन कौन से हैं, साल्ट ब्रिज हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर लेते, ख़राब कर लेते, जो हम पढ़ेंगे। और हमारे पास क्वेटरनरी प्रोटीन, वो कौन से प्रोटीन होते हैं, अ प्रोटीन विच जब फोल्डिंग क्या हो, मल्टीपल हो। सही है, क्या हो, दो से ज़्यादा हो जाए, किस में, किसके दरमियान, सेकेंडरी प्रोटीन दो से ज़्यादा या टर्शियरी प्रोटीन दो से ज़्यादा कॉम्बिनेशन फॉर्म में आ जाए, इस टाइप ऑफ प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी प्रोटीन कहते हैं। तो हमारे पास सबकी दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर जो लीनियर फॉर्म में आते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, फोल्डिंग बना देते हैं, फिर ये फोल्डिंग जो है मल्टीपल अरेंजमेंट में आ जाते हैं। सही, मल्टीपल फोल्डिंग आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, फिर क्या करते हैं, देखो ये सेकेंडरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर, ये फिर ये मल्टीपल फोल्डिंग आ जाए, इसको हम कहते हैं टर्शियरी कहते हैं। और फिर टर्शियरी से क्वाटरनरी प्रोटीन क्या कहते हैं, जब ये और ये मिल जाए या जब ये और ये मिल जाए, इससे फिर कौन सा बनाते हैं, क्वाटरनरी प्रोटीन बना देते हैं। हमारे पास डीनेचुरेशन का मतलब है किसी चीज़ की असलियत को डीनेचर किया जाए। जैसे मेरे असलियत है, मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, या जैसे गोश्त की असलियत क्या, एक ख़ास किस्म की जो स्टेबिलिटी है, उसमें भी प्रोटीन होती है ना, इसकी क्या खासियत है, कैसे जायका लेते हैं, इसकी इलास्टिसिटी होती है ना। तो ये क्या नेचुरेशन है। डीनेचुरेशन का मतलब इसकी ओरिजिनलिटी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, इसकी असलियत को क्या करें, चेंज किया जाए, इसको हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ अ प्रोटीन रिफर्स टू द अनफोल्डिंग रीअरेंजमेंट ऑफ द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विदाउट ब्रेकिंग द पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या करते हैं, अनफोल्डिंग या रीअरेंजमेंट करते हैं, सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। मैंने क्या बताया, इसकी असलियत को क्या कर लेते हैं, चेंज किया जाता है, इसकी ओरिजिनलिटी को। डीनेचर प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल, जब इसकी रीअरेंजमेंट किया जाते हैं या ऑटोमेटिकली हो जाता है, ड्यू टू द सच, हम पढ़ेंगे इसमें किस वजह से जो प्रोटीन होती है वो अपनी असलियत को खो देती है। जब असलियत खो देती है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, आपकी ख़राब हो जाए। जैसे हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है। व्हेन दिस हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या हो जाए, डीनेचुरेशन हो जाए ड्यू टू द हाइपोक्सिसिटी की वजह से हो जाए, या कि अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से हो जाए, या स्मोकिंग की वजह से हो जाए, तो फिर क्या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाते हैं। तो इसी तरह जब हमारे प्रोटीन जो है डीनेचराइज हो जाए और ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाए, तो फिर क्या हो जाता है, हमारा जो हर प्रोटीन का अलग अलग काम होता है, तो वो अपने काम बरकरार नहीं रख सकती हैं। सही है। तो डीनेचर प्रोटीन लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी अंडर माइल्ड कंडीशन, प्रोटीन कैन बी रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल कंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल डीनेचुरेशन। बाद औकात ये क्या कहते हैं कि माइल्ड कंडीशन में वो वापस आ जाते हैं, जब हम फ़ौरन इसकी डीनेचुरेशन के ख़िलाफ़ जो चीज़ जो है उसको रोक लेते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, इसकी डीनेचुरेशन रिवर्सिबल हो सकती है। इफ द डीनेचुरेशन आर ड्रास्टिक का मतलब हद से ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आप एक चीज़ यूज़ करते हो जो आपके जिस्म के लिए, आपके प्रोटीन के लिए क्या हो, नुकसानदा हो, तो ड्रास्टिकली अगर आप उस चीज़ को यूज़ कर लेते हो तो फिर क्या, द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल हो जाती है, यानी वो अपनी ओरिजिनलिटी को हम फिर बरकरार नहीं रख सकते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, प्रोटीन विल कोगुलेट एंड प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सोल्यूशन। हमारे पास देखो कुछ एजेंट्स हैं विच लीड टू डीनेचुरेशन, पीएच, एसिडिक एनवायरनमेंट या बेसिक एनवायरनमेंट, बेसिसिटी एंड एसिडिटी, बहुत कंडीशन क्या हो जाते हैं, आपके प्रोटीन की स्टेबिलिटी को क्या कर लेते हैं, ख़राब कर देते हैं। टेम्परेचर की वजह से, गर्माइश ज़्यादा हो, कूल एनवायरनमेंट, दोनों कंडीशन
प्रोटीन की स्टेबिलिटी को क्या कर लेती है, ख़राब कर देती है। आयोनिक स्ट्रेंथ की वजह से भी हो जाती है। आयोनिक स्ट्रेंथ का मतलब हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक दोनों कंडीशन हो सकते हैं, और सोलेबिलिटी भी करा सकती देती है। हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, देखो डीनेचुरेशन का मतलब जैसे ये ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनल टाइप नॉर्मल प्रोटीन है, जब ये डीनेचुरेशन हो जाए ड्यू टू सच टाइप ऑफ थिंग्स, तो फिर क्या हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर लाइक दिस हो जाता है, तो फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन हमने कहा कि माइल्ड कंडीशन में वो क्या हो सकती है, माइल्ड कंडीशन में वो रिवर्सिबल हो सकती है। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो जाते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, फिर रिवर्सिबल नहीं हो सकते। एजेंट्स कंडीशन विच कॉज डीनेचुरेशन, अल्कोहल की वजह से। अगर बंदा प्रोलॉन्ग टाइम्स ऑफ अल्कोहल यूजर, लीवर किस चीज़ से बना होता है, लीवर क्या है, इट इज आल्सो टाइप्स ऑफ प्रोटीन। जब आप अल्कोहल की कंजप्शन जो है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कर लेते हो, जब ड्रास्टिक कंडीशन क्रिएट कर सकता है इस प्रोलॉन्ग टाइम की यूजिंग आप अल्कोहल की वजह से क्या हो जाता है, आपको लीवर सिरोसिस हो जाता है, तो रिवर्सिबल क्या हो जाते हैं, इरिवर्सिबल हो जाता है, हमने ये कहा। लेकिन अगर आपके अल्कोहल कंजप्शन बिल्कुल नहीं हो और पेशेंट को हम कहें यू शुड टू स्टॉप द अल्कोहल कंजप्शन, इट कैन लीड टू इरिवर्सिबल कॉज, सही है, आपकी लीवर फेल करा सकते, तो हम फिर कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। तो अल्कोहल कंजप्शन की वजह, साल्ट एंड हेवी मेटल्स की वजह से भी हो सकता है। जैसे अगर आयरन सप्लीमेंट अगर आप हाईली यूज करते हो तो इसकी वजह से भी क्या हो जाते हैं, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से भी प्रोटीन डीनेचुरेशन हो जाता है, गर्माइश की वजह से, हीट की वजह से, रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी हो सकते हैं, पीएच जो एसिडिक या बेसिक दोनों करने, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन एजेंट की वजह से भी होता है और साल्टिंग आउट की वजह से भी हो सकता है। दिस वाज अबाउट द प्रोटीन एंड class has been dismissed till now. Okay.